परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमाओं आप सभी को जय मसीह की और सबको नाताल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन सब लोग खुशी है, सब लोग एक बार हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। चलो ज्यादा देर ना करते हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैं संजय कांडी को आगे बुलाऊंगी। हमारा માટે પ્રભુ જે ખુશીનો દિવસ અને મોટા દિવસ અને પ્રભુ આપણે છે ધન્યવાદ કરું આજે પ્રભુ અમે સર્વ મળીને તમારા નામનો મહિમા કરીને તમારા દ્વારા વચનો સાંભળવા માટે પ્રભુ તમે અમારા માટે કેમ પ્રભુજી હાલેલુયા ખુશી પર હાજર છે માટે પ્રભુ સારે સમજવા માટે પ્રભુ સમજાવવા માટે તમારા દાસને તમે કૃપા છે એટલા માટે ધન્યવાદ કરું હાલેલુયા અને પવિત્ર આત્મા અમારા પાપો અને ગુનાની દેવતા પ્રભુને છોડાવવા માટે પ્રભુ હાલેલુયા તમે તમારું સ્વર્ગ છોડીને પ્રભુજી હાલેલુયા અમારા માટે સર્ગ ઉપર આવ્યા પ્રભુ હાલેલુયા પવિત્ર આત્મા દેવ પ્રભુજી અમારા માટે પ્રભુ અમારા આત્મા નાખવાથી તમે બચાવ્યા છે એટલા માટે ધન્યવાદ વિશેષ કરીને પ્રભુ ત્યારે સર્વ બાળકોના પ્રભુ તારા હાથમાં સોંપી દેતા પ્રભુને પવિત્ર આત્મા બાળકોના જીવનમાં પ્રભુ સારે ડર ભયનો આત્મા એ સુધી તમારા નામથી તમે દૂર કરો ને બાળકોને હિંમત અને શક્તિ અને સામર્થ્ય આપી કરવા માટે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરી બાળક के विषय प्रोग्राम કરવા માટે કાર્યક્રમમાં મેળા સામેના વ્યક્તિ લોકો જો લોકો આગલા છેલ્લા નંબરે સામે લોકોની અંદર સમસ્ત તેની સાથે પ્રભુના જીવનમાં પરમેશ્વર આજે બાળકોના પ્રોગ્રામ દ્વારા દરેક હૃદયમાં તમે જન્મ લેવા માટે પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરી છે પવિત્ર આત્મા તમે સર્વના અમારા પ્રાર્થના તમારા હાથમાં સોંપી રહ્યા પવિત્ર આત્માને પ્રભુની સાથે ધન્યવાદ પ્રભુના નામમાં धन्यवाद संजय कांडी। अभी हमने मैं बाइबल का पोर्शन पढ़ने के लिए रेखा आंटी को वचन पढ़ीશું આપણે લૂકની લખી વાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય અને 26 થી 37 વચન સુધી વાંચીશું। છઠ્ઠે મહિને નાઝરેથ નામે ગાલિલના એક શહેરમાં એક કુમારિકાની પાસે એક દર્દી મોકલવામાં આવ્યો। દાઉદના વંશના યુસુફ નામે એક યુસુફની સગાઈ થઈ હતી। તે કુમારિકાનું નામ મરિયમ હતું। દૂતે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે હે કૃપા પામેલી સુખી રહે, પ્રભુ તારી સાથે છે। પણ એ વાતો સાંભળીને તે ઘણી ગભરાઈ ને વિચાર કરવા લાગી કે આ તે કઈ જાતની સલાહ હશે। દૂતે તેને કહ્યું કે હે મરિયમ બીમા, કેમ કે તું દેવથી કૃપા પામી છે। જો તને ગર્ભ રહેશે ને તેને દીકરો થશે ને તેનું નામ તું ઈસુ પાડશે। તે મોટો થશે ને પરાક્રમનો દીકરો કહેવાશે અને દેવ પ્રભુ તેને તેના પિતા દાઉદનું રાજ્યસન આપશે। તે યાકૂબના ઘર પર સર્વકાળ રાજ કરશે ને તેના રાજ્યનો અંત આવશે નહીં। મરિયમે દૂતને કહ્યું કે એ કેમ કરીને થશે, કેમ કે મેં કોઈ પુરુષને જાણ્યો નથી। દૂતે તેને ઉત્તર આપ્યો કે પવિત્ર આત્મા તારા પર આવશે ને પરમગણમાં પરાક્રમ તારા પર આસાદન કરશે। માટે જે તારાથી જન્મશે તે પવિત્ર આત્મા દેવનો દીકરો કહેવાશે। જો તારી સગી એલિસાબેત પણ ઘરપણમાં દીકરાનો ગર્ભ ધર્યો છે અને જે વાંછડી કહેવાતી હતી તેને આ 6થો મહિનો જાય છે, કેમ કે દેવ પાસેથી આવેલું કોઈ પણ વચન પરાક્રમ વગરનું નહીં થશે। મરિયમે તેને કહ્યું કે જો હું પ્રભુની દાસી છું, તારા કહ્યા પ્રમાણે મને થાવ। ત્યારે તેની પાસેથી ગયો। હવે લૂકની લખેલી વાર્તા તેનો બીજો અધ્યાય અને પહેલા વચનથી 20 વચન પઢીશું। તે દિવસોમાં કેસરિયા ઓગસ્તે એવો ઠરાવ બહાર પાડ્યો કે સર્વ દેશોના લોકોના નામ નોંધાય। કુરિયસ સિરિયસ પ્રાંતનો હાકીમ હતો। તેના વખતમાં વસ્તી એ પ્રમાણે ગણતરી થઈ હતી। બધા પોતાના નામ નોંધવા સારું પોતપોતાના શહેરમાં ગયા અને યીશુ પણ ગાલિલના નાઝરેથ શહેરમાંથી યહૂદિયા મધ્યે દાઉદના શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાશે તેમાં તે પોતાના તથા પોતાની ગર્ભવતી વિશાળી પત્ની મરિયમનું નામ નોંધાવા ગયો, કેમ કે દાઉદના વંશ તથા કુળમાંનો હતો। તેઓ ત્યાં હતા એટલામાં તેના દહાડા પૂરા થયા અને તેને પોતાનો પ્રથમ દીકરો જન્મ્યો। તેણે તેને લુગડામાં લપેટીને ગવાણમાં સુવાડ્યો, કારણ કે તેઓને
સારું ધર્મશાળા કઈ જગા ન હતી. તે દેશમાં ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો અને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તે બહુ વિરોમાં કેમ કે જુઓ, હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ ઈસુ છે. તમારે સારું નિશાની એ છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગવાણમાં સૂતેલો જોશો. પછી દૂતની સાથે આકાશની સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો. તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાવ તથા પૃથ્વી પર તેના માણસોને વિશે તે પ્રસન્ન છે. તેઓને શાંતિ થાવ. દૂતો દેવની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી તે ઘેટા બાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. તેઓ ઉતાવળથી ગયા અને મરિયમને, યુસુફને તથા ગહણમાં સૂતેલા બાળકને તેઓએ દીઠા પછી જે વાત એ છોકરા સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી તે તેઓને જાહેર કરી. જે વાતો ઘેટા બાળકોએ તેથી કહી, તેથી સર્વ સાંભળનારાઓ અચરજ થયા. પણ મરિયમે એ સર્વ વાતો મનમાં રાખી તે વિશે વિચાર કરતી. ઘેટા બાળકોએ જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ તેઓએ બધું સાંભળ્યું તથા જોયું. તેને વિશે તેઓ દેવનો મહિમા તથા સ્તુતિ करता पासा गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वचनों में हमने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह का एक असाधारण जन्म इस संसार में हुआ। इस स्वर्गीय की महिमा को छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण करके उन्हें जन्म देने के लिए भी जगह नहीं मिली। एक चरणी में उनका यीशु मसीह का जन्म हुआ करके वचनों में हम देखते हैं। इस प्रकार से एक असाधारण जन्म को हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। और वचन में जिस प्रकार हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। इसी कारण से इसी उद्देश्य से यीशु मसीह ने स्वर्गीय की महिमा को छोड़कर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके दास के समान इस संसार में जन्म पाया करके हमने इस वचन में देखा। आगे बच्चे लोग ने, छोटे बच्चे लोग ने एक वेलकम डांस तैयार किया आप सबके स्वागत के लिए, इसलिए मैं बच्चे लोग को स्टेज पे बुलाऊंगी डांस के लिए। Amore,
क्लास के बच्चे लोग ने तैयार किया है। बहुत ही कम समय में बच्चों ने बहुत मेहनत करके नाटक को तैयार किया है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान से एक नाटक को, एक गीत को समझ के उसको देखेंगे तो भी उसका कुछ मतलब होगा बच्चे लोगों को सीखने का। इसलिए सभी लोग शांति से इस प्रोग्राम को आनंद मनाएं। चलो, जीसस क्राइस्ट का बर्थ, यीशु मसीह के जन्म का नाटक के लिए जो जो बच्चे लोग हैं उसके लिए तैयार है। हुई थी जब उसने स्वयं को गर्भवती पाया, उनके इकट्ठा होने से पहले यह कैसे हुआ? मुझे संदेह होता है कि शायद ही लोग उस महान दिन का अनुभव कर पाएंगे। मरियम, तुम आनंदित हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यह क्या हो रहा है? यह कैसा अभिवादन है? क्या ये स्वर्ग सत्य हो सकता है? हे मरियम, तुम मत डर, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र का जन्म लेगी। तुम उसका नाम यीशु रखना, वही मसीहा होगा। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जबकि मैं कुंवारी होके माँ कैसे बन सकती हूँ। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने तुझसे कहा वह होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु की दासी हूँ और उसके वचन के अनुसार हूँ। परंतु यूसुफ एक हाकी था और मरियम का मंगेतर था, उन बातों को नहीं समझता था जो स्वर्गदूत ने उसके होने वाले पुत्र के विषय में कही थी। परमेश्वर ने मरियम को अपने पुत्र के लिए चुन लिया है। तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि सारे लोगों से पापों से छुड़ाएगा। अगली सुबह यूसुफ मरियम से मिलने गया। ओ मरियम, सपना में एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि तुम प्रभु की माता बनने जा रही हो। मरियम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में वो लोग बातें करते हैं। परंतु मैं तुम्हें अभी छोड़ के नहीं जा सकता। चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु कई यात्रा के दिनों के बाद दिनों की थी और यूसुफ और मरियम पीछे रह गए। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी थक गई है। आपके पास कोई कमरा है? क्षमा करें, परंतु आजकल बेथलेहम में बहुत भीड़ है, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं। नासरत से एक थकाने वाली यात्रा के बाद यूसुफ और मरियम बेथलेहम पहुंचे, किंतु नगर में इतनी भीड़ थी कि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। मेरी पत्नी शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आपके पास कोई जगह है वो विश्राम कर सके? आज रात तो नहीं है, परंतु ठहरो, मेरे अस्तबल में एक खाली जगह है। उसे ही ले लो यूसुफ, क्योंकि बहुत देर हो चुका है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। मरियम, यह स्थान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वही ठीक है यूसुफ, उसे ही ले लो। जो आश्रय हमें मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। परमेश्वर ने उदार देने का वायदा किया है और हम उसे देखने के लिए हम बहुत प्रार्थना, हर जिंदगी प्रार्थना कर चुके हैं ताकि हम उसे एक बार देख सकें। अचानक चरवाहों के चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकी। ये क्या है? परमेश्वर हमारी रक्षा करो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे लोगों के लिए आनंददायक होगा। दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीहा है। तुम उसको एक कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कि हम उद्धारकर्ता को चरनी में पड़ा हो लिपटा का पड़ा हुआ देखेंगे। चलो हम बेथलेहम भागकर जाएं। उत्सुकता, विस्मय और आश्चर्य के साथ चरवाहे बेथलेहम गए और द्वार में घुस के वे सराय की ओर मुड़ते हैं। देखो, अस्तबल में प्रकाश दिखाई दे रहा है। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर आ गया है, चलो हम उसे देखने चलते हैं। एक विचित्र और पवित्र रात थी जब बेथलेहम का सारा भरा हुआ नगर सो रहा था। मरियम प्रेम पूर्वक अपने बालक को कपड़े में लपेटती है और उसे चट्टी में लिटाती है और वहां चरवाहे उसे ढूंढ लेते हैं। हमें स्वर्गदूत ने बताया कि उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्म हुआ है, क्या हम उसे देख सकते हैं?
मरियम सिर हिलाकर उनको सहमति देती है और यूसुफ दीपक को थोड़ा सा बालक की ओर मोड़ता है, जिससे उसका प्रकाश शरीर पर पड़ता है। आदर पूर्वक चरवाहे बालक यीशु को देखते हैं। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। पापियों के पाप से बचाने प्यारा यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया। पापियों ने पाप से बचाने प्यारा यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया। चरनी में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। चरनी में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। पापियों ने पाप से बचाने प्यारा यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। हालेलुया। तैयार किया है। तू ही तू वो लड़के लोग करेंगे और यीशु तेरा नाम वो लड़के लोग करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं जवाब दूं
हमने बाइबल में यीशु मसीह का और एक नाम देखा, पढ़ते हैं। वो नाम क्या है? इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इससे कोई भी परिस्थिति हो, दुख हो, संकट हो, तकलीफ हो, हमेशा हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रह के चलेंगे तो वचन कहता है वो हमें सभी बातों से, हमारे सभी संकट से छुड़ाने के लिए वो विश्वास योग्य है करके हम अभी हम बच्चों ने गीत में भी कहा, तू ही तू मेरा सब कुछ, तू ही तू मेरा यीशु मेरे लिए काफी है करके हमने गीत में देखा। दूसरे गीत में हमने देखा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो एक बार हम यीशु मसीह की जय करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। वो हमारी गरीबी में, हमारी तकलीफ में, हमारे पापों में, हमारे धर्मों में, सभी बातों में से छुड़ाने के लिए वो विश्वास योग्य है। इसलिए हमेशा उसके ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो वो हमें हर एक बातों से छुड़ाएगा। आगे हम एक नाटक देखेंगे, दाऊद का अभिषेक। इस नाटक में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, सभी लोग ध्यान से इस नाटक को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से बाकियों को छोड़कर एक चरवाहा जो भेड़ चराने वाला एक साधारण मनुष्य को किस प्रकार से परमेश्वर चुनकर उसका अभिषेक करता है और उसे राजा के रूप में उसे नियुक्त करता है। तो इसके लिए मैं डेविड अनॉइंटिंग के लिए जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। दाऊद के नाटक में दाऊद के अभिषेक के સામુએલ દાઉદને ઇઝરાયલના રાજા તરીકે હું નકાર્યો છે, તેમ છતાં તું ક્યાં સુધી તું તેના માટે શો કરશે? તારા સિંહ તેલથી ભરીને જાય, યશાય બેતલેહેમ પાછો હું તને મોકલીશ, કેમ કે મેં તને દીકરાઓમાંથી એકને મારી સામે રાજા નિમિત્ત રાખ્યો છે। મારાથી કેમ કરીને જોવાય? જો સાઉલ તે સફળ છે તો તે મને મારી નાખશે। તારે સાથે એક ભેટ લઈને હું યહોવાની આગળ યજ્ઞ કરવા આવ્યો છું એમ કહેજે, અને તે યજ્ઞમાં યશાયને બોલાવજે। પછી તારે શું કરવું તે હું તને બતાવીશ, અને હું જેને નામ કહું તેને મારે સારો અભિષેક કરજો। હા, હું સલાહ શાંતિ સહિત યહોવાને અર્પણ કરાવવા આવ્યો છું। તમે પણ પોતાને શુદ્ધ કરી મારી સાથે યજ્ઞ કાર્યમાં ચાલો। તેના મોઢા તરફ તથા તેની શરીરની ઊંચાઈની તરફ ન જો, કેમ કે મેં એને નસના પસંદ કર્યો છે। કારણ કે માણસ જેમ જુએ છે તેમ યહોવા જોતો નથી, કેમ કે માણસ બાહ્યના દેખાવ જુએ છે પણ યહોવા હૃદયના તરફ જુએ છે। ના, આને પણ પસંદ કર્યો નથી, આને પણ પસંદ કર્યો નથી, ના આને પણ પસંદ કર્યો નથી, ના આને પણ પસંદ કર્યો નથી, ના આને પણ પસંદ કર્યો નથી। શું તારા સર્વ દીકરા અહીં છે? નાનો હજુ બાકી છે, એક મહિના સાલમાં તેને જઈને બોલાવી લઈ આવો।
क्या कहेंगे दाऊद ने जोर से कहना चाहते हैं ઉઠ અને અભિષેક કર કેમ કે એ તે છે સૈન્યોના દેવ યહોવાના નામે હું તારો અભિષેક કરું છું परमेश्वर के नाम की महिमा। उस नाटक में हमने देखा कि तेरह के यिशै के 7 बेटे थे। वो शाऊल की सेना में काम करते थे, मतलब सेना में काम करने वाले कितने हट्टे कट्टे होंगे, कितने दिखने में भी अच्छे होंगे। ऐसे यिशै के 6 बेटों को छोड़कर एक दाऊद जो चरवाहा था, साधारण नाटा सा था और दिखने में अच्छा था लेकिन नाटा सा था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे सब बेटों को छोड़कर परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन एक साधारण दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसका मतलब क्या देखते हैं कि मनुष्य बाहरी तौर से देखता है, मनुष्य रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। इस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के रूप में उसका अभिषेक किया। ये नाटक में हमने देखा। अभी आगे छोटे बच्चों का एक डांस है। एक छोटे बच्चों ने डांस तैयार किया है। ये छोटे बच्चों, ये प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ करके, इसलिए छोटे बच्चों को मैं आगे बुलाऊंगा। छोटे बच्चों
बच्चों ने इस डांस के बारे में बहुत अच्छी बात हमको सिखाई। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, आत्मा को दुख ना देना। एक सबसे बड़ी बात पवित्र शास्त्र में लिखी है कि पवित्र आत्मा को किसी भी कारण से दुख नहीं देना करके। इस अच्छी बातों को इस बच्चों ने सिखाया। वचन भी हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। किस प्रकार से हम बुराई से दूर रहेंगे तब परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा। अभी कालियावाड़ी में संडे क्लास चलाते हैं, वहाँ भी बच्चों को एक डांस सिखाया है आंटी ने। तो कालियावाड़ी के बच्चों लोग को मैं आगे बुलाऊंगी इस डांस के लिए। ઈસુ મંદિરમાં ત્યાં તો
यीशु मंदिરમાં થાય પ્રાર્થના यीशु મંદિરમાં થાય ત્યાં તો વીર સમરતા થાય ત્યાં તો વીર સમરતા થાય પ્રાર્થના यीशु મંદિરમાં થાય પ્રાર્થના यीशु મંદિરમાં થાય। किया है। ये बच्चे लोग कालियावाड़ी में आंटी संडे क्लास चलाने के लिए जाती है। बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे लोग रहते हैं, गीत भी गाते हैं, वचन भी सीखते हैं, प्रार्थना भी सीखते हैं। इस प्रकार से बहुत उत्साह के साथ रहते हैं। और अभी भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, नाचना भी नहीं आता, अच्छे से गाना भी नहीं आता है, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन। हालेलुया। अभी आगे एक नाटक है, बच्चे लोग अपने संडे क्लास के बच्चों ने, बड़े बच्चों ने तैयार किया है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग इन नाटकों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि किस प्रकार से स्वर्ग में प्रवेश होता है, कौन कौन स्वर्ग का हकदार है और कौन इसका हकदार नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को बुलाना चाहती हूँ कि इस नाटक में जो है वो बच्चे लोग आगे आए। मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, 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 मैं भी स्वर्ग जा रही हूँ। मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। बस आप कौन हो? आपने क्या किया है जो आप स्वर्ग जा रहे हो? मैंने सारे चर्च वाले कलीसिया को लोग खाना खिलाया है। आपने ऐसा क्या किया? आप स्वर्ग जा रहे हो। मैंने देश को बचाया है और मैं आर्मी बॉय हूँ, मैं देश को बचाया हूँ और युद्ध से पाकिस्तान से जीतना और देशवासियों को बचाता हूँ। मैं भी क्या आपके साथ स्वर्ग चलूं? चलो फिर। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। Where are you going? ये क्या बोल रही है? अरे ये क्या बोल रही है? I am जामिन स्वर्ग। ये हम तो जा रही हूँ। Of course, it's right. स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो सब स्वर्ग स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। आपने ऐसा क्या किया? आप स्वर्ग जाओगे? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानते। बहुत बड़ी नेता हूँ। ये नेता क्या होता है? आप नेता कोई नहीं जानते। तो तुमने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया है, नहीं दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? आप स्वर्ग जा रहे हैं। मैंने इंडिया की तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया है। नई नई सड़कें बनाई, नए नए घर बनाए। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हाँ, आ सकते हो आप। और वहाँ पे नेतागिरी मत करना। नहीं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। आप कौन हो? मैंने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। आपने ऐसा करके आप स्वर्ग जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है। वहाँ पे जाके फिल्म करोगे। स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। जो बात करते हो लोग वही ले आ रहे हैं। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। अयो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। क्या तुमने बाइबल के अनुसार चला? आना है तो आओ, नहीं तो फिर रहने दो। स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो 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 स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं।
वो बहुत सुंदर है और सुना है वो बहुत सुंदर है। एकदम मेरी तरह। हाँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा सुंदर लोग होंगे। मैं ऐसी वैसी सुंदर नहीं हूँ, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। चलो 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 चलो। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, 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 मैं एक टीचर हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम स्वर्ग जा रहे हैं। मुझे भी सर जाना है। सर कहाँ है? मेरे घर के पीछे है। चलो 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 चलो। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, 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 हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। तुम लोग स्वर्ग जा रहे हैं? स्वर्ग कैसे जाते हैं? स्वर्ग जाने का मार्ग बहुत ही कठिन है। तो हम सुबह करके जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए बहुत ही कठिन मार्ग है। वो परमेश्वर का नाम विश्वास करेगा और पापों का पश्चाताप करेगा, वही स्वर्ग जा सकता है। हमने पाप किए ही नहीं है, पाप किए ही नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य के अवतार में आए और हमारे पापों के लिए मारे गए। जानती हूँ वो ईसाइयों का परमेश्वर है, इसकी जरूरत हमको नहीं। परमेश्वर का जो अंगीकार करता है वही स्वर्ग जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन स्वर्ग जाता है। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, 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 हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। हम तो एक सोचो बैठते करके जा रहे हैं। आओ जरा ना, ये तो निकल गया। आओ अरे वाह, कितना सुंदर है। अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा तो ही तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? रूबन, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। अरे जरा देखो देखो, मैंने देश के लिए बहुत सूरत टॉप लिस्ट ना टॉप लिस्ट नहीं, तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो भाई कहाँ है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? बिबला, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं है। अरे देखो देखो, मेरा नाम हो गया। मैंने बहुत सारे लोग खाना खिलाया है। देखो देखो, तुमने सिर्फ अपनी बड़ाई पाने
जाने के लिए चर्च में सेवा की है, लेकिन दिल से परमेश्वर की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? I'm going to heaven. हेवन जाने के लिए तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होना जरूरी है। तुम्हारा नाम क्या है? My name is India. My name is Aradhna. My name is Selena. तुम तीनों का नाम जीवन की पुस्तक में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। देखो देखो, होगा होगा। नहीं, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा। करिश्मा, तुम्हारा नाम भी जीवन की पुस्तक में कहीं नहीं है। अरे होगा, देखो ना, जैसे रीता की लिस्ट में होगा। नहीं, तुम्हारा नाम कहीं नहीं पाया जाता। मैं आपको पैसे दे देती हूँ, मेरा नाम अंदर लिख दो। यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। ऐसा मत करो ना, देखो ना, होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे स्वर्ग जाना है। क्या? मेरा नाम गीता बच्चन। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में कहीं नहीं पाया जाता। बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया। तुमने भले ही करोड़पति बनाया हो, लेकिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम रोशन है। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? रोशन। रोशन। हाँ रोशन, आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाता है। आपने परमेश्वर की सेवा की है और दिल से आराधना में गए हो और परमेश्वर की आराधना की है और परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए स्वर्ग में आपके लिए जगह है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं स्वर्ग जा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा लवली है। अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा तो ही तुम स्वर्ग में जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में कहीं नहीं है। अरे होगा, यूसीएफ में एकदम फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा नाम। पहले हो या आखिर हो, तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है जीवन की पुस्तक में, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेमिनी है। इस जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। होगा होगा, देखो मैंने कितने जनों को कलीसिया में पढ़ा है, परमेश्वर के बारे में सिखाया है, मेरा नाम क्यों नहीं होगा? होगा होगा, देखो पहले पढ़ने में दूसरे पढ़ने में होगा ही। तुमने सिर्फ अपनी बढ़ाई पाने के लिए, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन परमेश्वर को दिल से आराधना नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। होगा, हमेशा की मैंने सेवा की है, क्यों नहीं होगा? क्या आप मुझे जानते हो? क्या मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हेप्सिबा। हाँ हेप्सिबा, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में पाया जाता है। आपने परमेश्वर को जाना है, उसे अंगीकार किया है। आप नित्य आराधना में भी जाते थे, प्रार्थना करते थे, लगातार परमेश्वर की खोज में रहते थे, इसलिए आपके लिए स्वर्ग में जगह है और आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में भी पाया जाता है। Yes, thank you Jesus. अरे आपको ना अरे आपको ना आपका नहीं जा रहे हो, वहाँ पे मिलेगा क्या? अरे ये तो आगे
चलो मैं तुम्हें नाम के दुआ दिखाता हूँ। चलो वहाँ सब कोयला वाला है। तुमने वाले कौन नहीं कहते हो? आपके साथ दिखाने के लिए चलो कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे सच जाना है। हमारा रास्ता जाने का टाइम आ गया। चलो तुमको नर्क ले जाना है। तुम्हें नर्क में जाना होगा। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, वहाँ पे मुझे रहने के लिए अच्छा सा इंतजाम करके दे। नर्क में कितना लोगे उसको की तरफ की कर दूँगी। हाँ ठीक है, मैं जाऊँ नर्क में। नहीं जाना इधर। तुम्हें इधर जाना होगा। भले ही 2 जन तो में गए, लेकिन बाकी सब नर्क में गए। इसलिए तो बहुत ज़्यादा खुशी है। इस नाटक में हमने क्या सीखा कि बहुत सारे लोग, टीचर हो या फिर बड़े नेता हो या बहुत अच्छे दिखने वाले हो या फिल्म एक्टर हो, बहुत सारे लोग स्वर्ग के रास्ते में जाने के लिए निकले थे, लेकिन वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग का रास्ता बहुत ही सकरा है, इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो उस रास्ते में से प्रवेश कर सकते हैं। अभी हमने आगे भी वचन में देखा था, जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, अगर जो कोई पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। इसलिए आप इसमें से देखो, उसमें से मेजॉरिटी लोग नरक की ओर गए और सिर्फ 2 लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और सही रास्ते पर चलते थे, केवल वो 2 लोग ही स्वर्ग में जा सके। इसलिए जीवन की पुस्तक में अपना नाम होना बहुत ही जरूरी है। अब वो कब होगा? जब वे यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, मन फिराएंगे, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अभी एक संडे क्लास के बड़े बच्चे लोग के एक डांस तैयार किया है, दिन है खुशी का, हालेलुया। तो मैं इन सभी बच्चों को आगे बुलाऊंगा। खुशी का हालेलुया, जिंदगी का हालेलुया, खुशी का हालेलुया, जिंदगी का हालेलुया। जिंदा हुआ है मेरा खुदा है, जिंदा हुआ है मेरा खुदा है, मेरा खुदा है हालेलुया, मेरा खुदा है हालेलुया।
जिंदगी का हालेलुया आगे एक और नाटक है गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस बारे में एक नाटक है, अगर आप ध्यान से इस नाटक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाटक को किस उद्देश्य से तैयार किया। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों को बुलाना चाहती हूँ जो इस नाटक में है। वाह, क्या बात है, आज की चाय बहुत अच्छी बनी है। आज आपकी छुट्टी है ना, आज हम घूमने जाएंगे। ठीक है, जाएंगे। क्रिसमस आने तो क्रिसमस का बोनस मिले देता हूँ। इस तरफ से नहीं क्या तब देखो तो बहाना बनाते रहते हो। अभी क्या सुबह सुबह तुम गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? आज तक तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है? क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। इतना महंगा साड़ी खरीदी थी, उसका क्या? ये साड़ी में शादी में पहन के गए, वो लोग मुझ पर हंसने लगे कि चोर बाजार की साड़ी है। वो इतनी बड़ी हील वाली सैंडल खरीदी थी, उसका क्या? सैंडल तो हील वाली है, पर तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और इतना महंगा हार खरीदी थी, उसका क्या? हार तो मेरे पापा के पैसे से खरीद के लाए थे। जब चाहे तब पापा करती रही थी, पापा के आगे। खबरदार मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला तो अपने मम्मी को बुलाओ, तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं आगे मेरी अकल ठिकाने। डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे चलो आता है, जल्दी प्रार्थना करेंगे। टिंग टोंग टिंग टोंग। आइए पास्टर, प्रेज़ गॉड। नमस्ते बच्चे, आइए पास्टर। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। ठीक है सिस्टर। ब्रदर, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ मैं बहुत ही खुश होती हूँ, क्योंकि हर समय पर आपके घर पर प्रार्थना की आवाज़ सुनाई देती है।
तो बिल्कुल पागल ही हो गया। आप तो नहीं पियोगे ना चाय? नहीं पीऊंगा मैडम। ये सिस्टर क्यों इतना गुस्से में है? क्या करूं पास्टर, जब से मैंने शादी किया है इसके साथ तब से मेरे साथ कुछ ही नहीं है। थैंक यू। क्या बोल पास्टर, जब से मेरी शादी इनके साथ हुई है ये मेरे साथ खुश ही नहीं रहते। गुस्सा मत करो सिस्टर, आप यहाँ पर बैठ जाओ। बैठ जाओ सिस्टर। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। इस कहानी में एक बहुत ही गरीब स्त्री है, वो बहुत ही दुखी है, उसके पास पैसा भी नहीं है और इस परिस्थिति में भी वो कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देती है वो हम देखेंगे। हे परमेश्वर, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लाइट का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, स्कूल का फीस भरना है। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा। उसी समय गरीब स्त्री को एक लंगड़ा दिखाई देता है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। भले मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास हाथ और पैर सब कुछ है, इसलिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। हे परमेश्वर, मैं मुझे लंगड़ा क्यों बनाया? अब मैं इतना दूर कैसे चल पाऊंगा? उसी समय उस लंगड़े की नजर एक भिखारी पर पड़ती है और वो लंगड़ा इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद देता है वो हम देखेंगे। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे इस भिखारी के समान नहीं बनाया और आपने मुझे सर दिया। वजह मैं लंगड़ा हूँ पर उस भिखारी तो नहीं हूँ ना, उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। वो लंगड़ा भिखारी बहुत ही परेशान और दुखी होकर चलता है। उस भिखारी की नजर अंधी भिखारी पर पड़ती है। उस समय पर वो परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देती है उसे हम देखेंगे। धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, आपने मुझे अंधा बनाया, भिखारी बनाया, ऐसा क्यों बनाया आपने? तब उस अंधी भिखारी की नजर एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। तब वो परमेश्वर से क्या कहती है वो हम देखेंगे। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भले ही आपने मुझे अंधा बनाया, भिखारी बनाया, पर आपने मुझे बीमार नहीं बनने दिया और इसके लिए आपने मुझे भला चंगा रखा, इसलिए आपको धन्यवाद। जब वो व्यक्ति जो एम्बुलेंस में था वो बहुत ही दुखी था। मैं कितना दुखी हूँ, मुझे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, मैं कितना बीमार हूँ, बाकी सबको कितनी खुशी है। तब वो जो बीमार व्यक्ति था उसकी नजर एक मुर्दे पर पड़ती है जो जिसे 4 लोग ले जा रहे थे। उसे देखकर वो बीमार व्यक्ति क्या बोलता है वो हम सुनेंगे। अच्छा है, मैं जिंदा तो हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे इस कहानी में हमने देखा, कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम भिखारी हो या लंगड़े हो या बीमार व्यक्ति बनकर रहेंगे तो भी हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सिवाय उस जो मुर्दा व्यक्ति था उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। इसलिए हम भी जब तक जीवित है तब तक परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। धन्यवाद
परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अंधा था, लंगड़ा था, अंधा भिखारी भी था, एक बीमार व्यक्ति भी था, कितने सारे लोग थे। लेकिन जब दूसरे को हम देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम उनसे ज्यादा परमेश्वर ने हमें भला चंगा और अच्छा रखा है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब भलाई के लिए होता है करके। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी जो भी परिस्थिति हो हर एक बात में हमें परमेश्वर के लिए धन्यवादी बनते रहना चाहिए। अभी आगे एक ग्रुप सॉन्ग है, अपने जवान बच्चों ने तैयार किया है, हद तो प्रीति है कुछ बारी। ये आखिरी हमारा प्रोग्राम है, तो सभी लोग शांति के साथ बैठेंगे। तो प्रीति है तू जवानी प्रभु जी मारा, तो प्रीति है तू Yeah.
ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता आप लोग बहुत खुश हुआ करके बच्चे लोग अपने थोड़े समय के अंदर अच्छा प्रैक्टिस करके अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उस बच्चे को उत्साह दिलाने के लिए एनकरेज कर आप एक बार जोरदार मिलकर ताली बजा के नया लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये बच्चे लोग जो प्रोग्राम जो आपके सामने दिखाया है, ये अपने चर्च में रविवार का दिन आराधना होती है। आराधना के बाद ये बच्चों का थोड़ा सा संडे क्लास थोड़ा समय चला जाती है। वो संडे क्लास में जो बच्चे आते हैं उन्होंने किसी अच्छा प्रोग्राम आपको करके दिखाया। और आपके घर में कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चों को भेजेगा तो इस प्रकार कुछ अच्छी बातों को बच्चों को सिखाएगा, बच्चों को समझाएगा, कल बच्चों के आशीष के कारण बनेगा। अगर आप लोग कभी कोई आत्मिक संगति आराधना में नहीं जाते हैं, आत्मिक संगति नहीं रखते हैं, यहाँ पर हमारे रविवार का दिन सुबह 8 बजे प्रार्थना होती है, 8 बजे आराधना होती है। और जो काम धंधे में जाते हैं 8 बजे आराधना नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सुबह 5:30 बजे की प्रार्थना होती है। इसलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना की जरूरत है, आप कोई दुख में तकलीफ में है, कभी परेशानी में हो, कभी प्रार्थना की जरूरत होता है, आप लोग आ सकते हैं और हमारे साथ आराधना में संगति में भाग ले सकता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेगा। अभी आपके लिए थोड़ा दोपहर के समय हो गया, इसलिए खाने का इंतजाम किया है। इसलिए अभी थोड़ा समय हम प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ ये सभा समाप्त करेंगे और आप लोग थोड़ा जल्दी से चटाई सब निकाल कर बराबर बिठाकर आप लोग का खाने के लिए तैयारी हो सकता है। जिसको अर्जेंट है जल्दी जाना है वो लोग पहले खाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आराम से थोड़ा देर से जा सकता है तो थोड़ा टाइम लेकर आप लोग आराम से खा के जा सकता है। प्रभु आप आशीष करें। आप सब मिलकर इसी भोजन बनाने में बहुत मेरे भाई और बहन लोग मदद किया है। ये सारी देखो ये सजावट जो रात को कुछ अपने कुछ बच्चे लोग रात भर सोया नहीं है, रात भर वो ऊपर का लाइट लगाया, स्टार लगाया, बाहर ये सारे डेकोरेशन कुछ बच्चे रात भर सोया नहीं, ऐसे ही प्रयास किया, मेहनत किया। उन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दे। जो बच्चे मेहनत किया, प्रयास किया, कोशिश किया, सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए अपने आंखें बंद करेंगे, कुछ 1-2 मिनट अपने सर प्रभु के सामने झुकाए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान हमारे प्यारे आसमानी खुदावंद, प्रिय परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। इसी 2021वां साल के प्रभु आप इसी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म का दिन की प्रभु जी हालेलुया स्मरण किया जाने की इसी बड़ी अवसर पर हालेलुया। आइए सभी प्रिय भाई बहन बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब आप तेरी महिमा प्रेमी प्रभु तेरी महिमा को इसी आराधना में भाग लिए हुए सभी प्रिय भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को यीशु मसीह के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं। इन सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करते सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की मतलब को बराबर समझे, उस अपने जीवन पर यीशु मसीह के समर्पण करते हुए अपनी आत्मा को विनाश होने से बचाने में आज कुछ बच्चे जो प्रोग्राम जो करके दिखाया है इनमें से कुछ अनेक बातों को हमें सीखने के लिए मिला है। हालेलुया। इसलिए हम बड़ी समझदार बनकर ऐसा को भी हमारी आत्मा को नाश होने से बचाकर हम परमेश्वर के राज्य के खोज में लगे रहने के लिए पवित्र परमेश्वर हमें कृपा है। आज बच्चे जो प्रोग्राम में जो शामिल हुआ है उन सब बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बच्चों को सिखाए हुए सभी इंस्ट्रक्टर्स के लिए धन्यवाद करते हुए सभी को आशीष करो और कृपा अनुग्रह से भर दे। ये बच्चे और भी बड़े होकर और आपकी महिमा करके बच्चे बन जाने के लिए आपका पूरा ध्यान अनुग्रह इन बच्चों को रखकर उन्हें आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत से बच्चे यहाँ पर शामिल है और जो माता पिता अपने बच्चों को भी यहाँ पर इसी प्रार्थना सभा में ये संगति में प्रभु अपने बच्चों को भी भेज दे। बच्चों इस प्रकार अच्छे अच्छे अनुभव को सीखे, बच्चों के कल उसके भविष्य यीशु के नाम से आशीर्वादित हो जाने में आप कृपा करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम।
लगाकर हमें मदद किया, हमें सहायता किया। प्रभु सजावट की काम में, प्रभु डेकोरेशन की काम में जो बच्चे प्रयास किया उन सबको तुमने आशीष करो। खाना बनाने में, सामान लेने में और जो कुछ प्रयास किया उन सभी को तुमने आशीष करो। हम सब मिलकर एक साथ मिलकर आनंदित होने का एक शुभ अवसर आप हमें दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। ये आनंद खुशियां शक्ति को हमेशा बनाए रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार का भलाई से भर दे, आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना सुनने इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज इस सभा में बाकी सभी प्रियों के साथ, सभी पवित्रों के साथ, विशेषकर जब प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करके दिखाया उन बच्चों के साथ हमेशा मसीह के आगमन तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We wish you a Merry